Hello and good morning, everyone. So, welcome to this another session of our web development program. So, as discussed earlier in the previous webinar, that we will be having a demonstration of WordPress and all. So, we are going to see that today. So, as usual, before we start, let me just tell you that the meeting is being recorded and we will be sharing the meeting later on YouTube. So, welcome all to this particular event. Thank you for taking out your time on Sunday. So today we are going to discuss about how to design a website or manage your website without coding and other things. So today I'm going to demonstrate two things. One is what is the basic way of developing a website. Fine. So I'll demonstrate you something. And then I will show you how to use WordPress, what is WordPress and all. And then we are going to work with that. Fine. So before we start, if you have any questions or anything, you can ask. Otherwise, I will continue with the discussion further. Or as usual, like if you have any doubts or questions, you can put your questions into the chat box and my co-host Geeta is going to handle the questions. She will redirect the questions to me. And then most probably in the end, if you have any doubts or queries, or in between if you have queries while I am demonstrating, you can ask at that time. Not an issue, because this is a more demonstrative thing. So it's better that anytime you are confused somewhere, you can ask about that. Fine. So shall we go ahead with the discussion for today's webinar? Okay. So great. Let's start with this. So all of you are planning to work on a website and you would want to develop your own website, and primarily, as this webinar has been declared, that you would want to handle your own website, means that you don't want to rely on someone else and have more and more control of the website in your hands. Fine. So I'm just going to go through certain basic aspects. If uh, someone of you did not attend the previous webinar about the concept of web development and how hosting and other things are done, so I'm just going to discuss about that. So when we talk about web hosting, there are few concepts. One is your domain name. Another is the web space that you require where you are going to host. These are the web servers with other functionalities that are provided into them. That is what also I'm going to show you. Today's demonstration is going to be on an actual server, and my friend Sudhanva has provided me a actual real server with the actual domain name. So I will be using two domains to show demonstrate to you two different setups. One is a simple setup where basically it's based on the coding concept. The idea why I want to demonstrate that to you is that you can get the feel feel that difference, that how easy it is going to be doing something with WordPress. Fine, even if you don't know coding. So that is one of the ideas. Also, it will give you an idea about how that particular simple mechanism of using coding can be suitable. Fine. So coming back to our point, the first point was the domain name. Domain name is what everyone knows, like something www.xyz.com, like my domain name, which primarily where my stuff is the open source cook.in. Right? That is where my contents are stored. Now similarly, I manage different websites for different organizations and all. They have their own domain names. So the first thing is, a domain name is your identity on the web, and you have to register the domain separately. Fine. So the second thing is, once you have registered your domain, you have to have some web space, a server on the internet, which is going to share the information with others. Fine. So domain name is like office address, and server space is like the actual office space that you have, where you demonstrate your products or
from where you provide your services and all. That's the physical space somewhere on the internet. Fine. Now, these two things are primarily required. These things can be registered separately, or generally there are people who provide these hosting services. Fine. Lot of different websites are there and organizations are there which are providing you the hosting services. You simply have to go to their website, select a suitable plan as per your requirement, which you will be able to decide after today's session. Fine. And after taking up that particular plan, you can start your hosting. So what the hosting service people do is they provide you a functionality to register your domain as well as connect your domain name to their hosting service where your content will be available. Now, one of the very important aspect is whenever you register a domain name, make sure the domain name is getting registered on your name. Fine. You have access to something called as a domain control panel. A domain control panel is a section from where you manage your domain names. It is like the office or business that you are registering, that should be registered on your name and not anyone else's. And the hosting service or the server is like the office space which we may want to shift from one time to another to some other person. That can be changed. So if the domain control panel access is not available with you, it will become difficult for you later on to move to some other hosting services. Anyways, so keeping that in mind, we have to select a hosting service. Fine. Now, when we talk about websites, there are different ways to develop a website. Fine. A website interface that a user sees traditionally on a web browser like Firefox, or your Brave browser is there and Chrome browser is there. The interface that you see is usually in HTML, CSS and JavaScript combination. Fine. Primarily, you need HTML to create your web pages. The interface that you create, the pages that you see are usually, the output is main HTML. Fine. So if you want to make a very simple website, fine. If you want to make a very simple website, then you can actually simply make some 4 or 5 pages in plain HTML and upload it on the server. Fine. The idea is, if you don't have to upload too much of content every now and then, and you just want a web presence, fine, your presence on the internet, as I had discussed last time also, having a website with some content makes it look much more credible. It looks much more official that you have an actual website, rather than having your information in some uh, directory type of a website or advertisement type of a website. It's much better to have an actual presence on the web. Fine. That increases your credibility. Okay. Sir, we have got one request in our WhatsApp group कि हिंदी में थोड़ा सा यूज किया जाए. Okay, no problem. Fine. So everyone, if everyone is okay in Hindi, I can take it in Hindi. Fine. If you can give me a thumbs up, so I'll mix it with Hindi and English. Okay, so चलिए फिर, तो वेब डेवलपमेंट जो हम लोग करना चाहते हैं उसके लिए डोमेन रजिस्टर करना है और होस्टिंग सर्विस हमें रजिस्टर करनी है. ठीक है. सो डोमेन तो जैसे मैंने आपको बोल दिया, ये आपके ऑफिस एड्रेस की तरह है. डोमेन के जब कोई डोमेन टाइप करेगा तब आपकी वेबसाइट विजिबल होगी. बट आपकी वेबसाइट के लिए ऑफिस स्पेस चाहिए. फाइन. जहां पे आप अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे. तो जो वेबसाइट है ये, दीज आर ऑल इन डिजिटल फॉर्मेट. ये सब डिजिटल कंटेंट होता है. तो आप इमेजेस दिखा रहे हैं या फिर आप अपने सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, तो ये सब बताने के लिए हमें जो वेबसाइट का कंटेंट डेवलप करना है, उसको डेवलप और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं. सो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज करके हम सिंपल बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं. जैसे इसको मैं यूजुअली रेफर करता हूँ, ब्रोशर जो हम लोग बनाते हैं अपने कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या फिर आपने एक छोटा नोटबुक पैम्फलेट बना दिया है, उसमें 4-5 सेक्शन होते हैं. सो इन सेक्शंस में आप जो इंफॉर्मेशन भर देते हैं वो फिक्स रहती है. फिर कुछ टाइम के बाद आप नया ब्रोशर प्रिंट कराते हैं, फिर वो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अब ब्रोशर वाले सिस्टम में क्या होता है,
जब आपके जो वेबसाइट्स हैं ये इस टाइप के वेबसाइट्स होते हैं जहां हमको कंटेंट रेगुलर चेंज नहीं करना है, डेली चेंज नहीं करना है, या हम बहुत नई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हमारा कंटेंट रेगुलर चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसको सिंपली HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि ये वाली वेबसाइट्स बहुत फास्ट चलती हैं और इनमें सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें कोडिंग वोडिंग बैकएंड में नहीं होता है। अभी मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट अगर आपकी साइट सिंपल HTML CSS से बनी है इमेजेस के साथ, जहां पे सिर्फ आप इंफॉर्मेशन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो ये सिक्योर होती है और ये फास्ट चलती है और इनका डाउन टाइम कम हो जाता है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में कोई सर्विस नहीं यूज करते। राइट, जैसे डेटाबेस होता है, हम जब वर्डप्रेस की बात करेंगे या और दूसरे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे, ये लोग बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं सर्वर पे, जो यूजर को नहीं दिखता है। तो जो स्टैटिक वेबसाइट हम बोलते हैं वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, सिर्फ ये 3 कॉम्बिनेशन से बनती है। ऑफ कोर्स उसमें हम इमेजेस और PDF ये सब अटैच कर सकते हैं, बट उसमें पीछे बैकएंड में और कोई दूसरी प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए होती है। तो अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक्स आता है या आपको ऐसा कुछ इंटरेस्ट है, तो आप सीख सकते हैं और आपने अपने वेबसाइट उससे बना सकते हैं। तो आप सिंपल वेबसाइट डेवलप करके रख सकते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन है, आप चाहें तो रेडिली चेंज कर सकते हैं, 10-15 दिन में पेजेस ऐड कर सकते हैं। पर स्टैटिक वेबसाइट के जो एडवांटेजेस बताए कि वो फास्ट है, डाउन टाइम कम होता है, और वो ब्रोशर टाइप वेबसाइट अगर आपकी है, 10-15 पेज मैक्सिमम है, तो आप उस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लेसर कॉस्ट में उसको बना सकते हैं, क्योंकि आप सस्ता सर्वर ले सकते हैं। सस्ता इन द सेंस आपको कम वेब स्पेस लगेगा और दूसरी चीजें नहीं लगेंगी। और अगर कुछ आपको ऐसे फंक्शनैलिटी चाहिए कि भाई हमें यूजर से रिस्पॉन्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप गूगल फॉर्म वगैरह के साथ लिंक बना दीजिए, उधर से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पर अगर आपको फुल फ्लेज वेबसाइट चाहिए जहां आप कुछ डेली अपडेट्स कर रहे हैं, आप आर्टिकल लिख रहे हैं, डेली डेली कर रहे हैं या वीकली कर रहे हैं, और आपको कोडिंग नहीं करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिसको हम जनरली बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये रेडीमेड प्रोग्राम्स हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप एक बार उसको हम इंस्टॉल कर देंगे सर्वर पे, और उसके बाद आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा। तो जैसे आप अगर जीमेल यूज कर सकते हैं, जीमेल यूज करके आप थोड़ा सीख लेते हैं मेल वेल कैसे भेजते हैं, उसी तरह ये इंटरफेस आ जाते हैं जिसमें हमें कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, और हम अपने पेजेस बना सकते हैं, उसकी लिंक विंक अपने आप बन जाते हैं, और वो कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो सारा कंट्रोल वो प्रोग्राम करता है। इसको हम बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत अलग अलग तरह के आते हैं और अलग अलग पर्पज से आते हैं। तो उसमें जैसे वर्डप्रेस है, ये एक काफी पावरफुल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और बहुत कॉमनली यूज होता है, इजी इंटरफेस है, आप उसमें डिजाइनिंग और लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सीखना पड़ेगा, मतलब ये नहीं कि, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा या आपको ऐसे गलत नहीं बताऊंगा, बट आपको सीखना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। बट ये है कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग के झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। विदाउट प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग आप अपनी साइट मेंटेन कर सकते हैं। बट जैसे MS ऑफिस यूज करते हैं या आपने कंप्यूटर यूज करना सीखा है जहां आप प्रोग्रामिंग के बिना सारा काम कर रहे हैं, वैसे ही हम वर्डप्रेस से कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं ओपन सोर्स एंथुजियास्ट हूँ, मैं सारा काम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए करता हूँ, और ये जो मैं वेबिनार कर रहा हूँ ये भी एक तरीके से मेरा कंट्रीब्यूशन है, सो दैट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी प्रमोटेड। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन वेब, स्पेसिफिकली जब आप कमर्शियल लेवल पे जाते हैं, वो ये होता है कि लाइसेंसेस आते हैं। जब तक आप पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं या आपकी कोई इंस्टीट्यूट है, ऑफिस है, आप कुछ ग्राफिक्स डिजाइनर है या कुछ है, आप ऐसे कुछ कर रहे हैं काम, तो उस टाइम आप डायरेक्टली सबके कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो अगर आपके लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है या कुछ है तो चल जाता है। बट जब आप वेब पे जाते हैं तो ये लाइसेंसिंग एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है, राइट। सो दैट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से एडवांटेज ये होता है कि ये सारा सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है, इट इज फ्री टू यूज एंड इट इज लीगल, फाइन। उसी तरह से जब हम कुछ इमेजेस वगैरह यूज करते हैं, ग्राफिक्स यूज करते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो हमें
कमर्शियल यूजेज के लिए इमेजेस देते हैं, हम कुछ भी कॉपी पेस्ट करके नहीं यूज कर सकते हैं, फाइन। तो ऐसे इश्यूज से बचने के लिए हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और हम इमेजेस ऐसे वेबसाइट से यूज करते हैं जहां पे वो हमें कमर्शियल यूजेज के लिए फ्रीली मिल जाए। और अगर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको वेबसाइट से बहुत फायदा हो रहा है, तो बहुत सारी साइट्स हैं जहां पेड सर्विस से आप अच्छे इमेजेस और ग्राफिक्स भी ले सकते हैं, राइट। इसमें एक पॉइंट ये है कि आजकल एआई का बहुत यूज हो रहा है और यूजिंग एआई पीपल आर जनरेटिंग लॉट ऑफ इमेजेस, फाइन। तो एआई से जो इमेजेस जनरेट हो रही है, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसके कॉपीराइट्स वगैरह क्या होंगे। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए कि एआई जनरेटेड इमेजेस हम यूज करेंगे कि नहीं। और कंटेंट आप जो जनरेट करते हैं वो भी कई बार हम लोग एआई से करते हैं, क्योंकि एआई आ गया है तो हम उसको एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा संभल के देखना है, जो कंटेंट यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करें, अपनी लैंग्वेज के लिए करें और यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट और जरूरी हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम ऑनलाइन आ जाते हैं, बिकॉज आपकी प्रेजेंस सबके सामने आ जाती है, फाइन। गवर्नमेंट है सबके सामने, या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनको पता होता है कि आप ऑनलाइन में क्या यूज कर रहे हैं, तो इश्यूज हो सकते हैं, फाइन। तो ये एक बड़ा एस्पेक्ट है और एडवांटेज है जब हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सो सबसे पहले तो हम अब देखते हैं आज कि हम एक सिंपल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब स्क्रीन शेयर करूंगा और आप वहां पे देख सकते हैं, भाई। नाउ ये जो आप देख रहे हैं ये दो डोमेन है, एक मेरा ब्लेंडर इंडिया का डोमेन है और एक ये QDNS डोमेन है। अभी ये हमारे साइट से जो हमने रजिस्टर कर रखे हैं, ये मेरे फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया सुधनवा, उनके वो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और डोमेन रजिस्ट्रेशन भी करके देते हैं। तो ये मैंने उनसे रजिस्टर किया हुआ है। ब्लेंडर इंडिया मेरा डोमेन है, ये QDNS उन्होंने मुझको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दे रखा है, आज उनकी तरफ से मिला हुआ है पूरा डोमेन और पीछे का वेब स्पेस भी। सो ये जो है अभी इधर हमने डोमेन रजिस्टर कर लिया है और हमने अपना वेब स्पेस भी रजिस्टर हो गया है इसके साथ, दोनों में। तो अब इसमें हमको अपनी वेबसाइट डेवलप करनी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है कि हमें अपने वेबसाइट में लॉगिन करना है। तो जो भी आपका डोमेन नेम है या जहां से भी आप डोमेन रजिस्टर करते हैं, वहां पे आपको वो लॉगिन का लिंक बताएंगे, फाइन। लॉगिन मींस ये पूरी वेबसाइट को बैकग्राउंड से मेंटेन करने के लिए, मतलब हमें एक फाइल मैनेजर टाइप फंक्शनैलिटी चाहिए बैकग्राउंड से मेंटेन करने के लिए। तो सर्वर पे जो हमारा अकाउंट है उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो अभी ये जो qdns.in है, इसमें जो कंट्रोल पैनल है वो एक अलग कंपनी का है, ठीक है। तो इसमें हम जरा लॉगिन करते हैं QDNS में। तो ये हमारा लॉगिन हो गया है QDNS वेबसाइट में। ये है हमारे वेबसाइट का बैकएंड, जहां जो हमें सर्वर स्पेस मिली है हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। ये है कंट्रोल पैनल, ये होस्ट कंट्रोल पैनल नहीं है, ये हमारा होस्टिंग पैनल है जहां से हम अपना सारा काम कर सकते हैं। तो इस पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं। आप अपने ईमेल अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, डेटाबेस सेटअप कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। अभी उन सब को छोड़ के सिंपलेस्ट चीज जो हमको चाहिए, फाइल मैनेजर का एक्सेस चाहिए, ठीक है। फाइल मैनेजर आपको मिलेगा। और दूसरा इनमें सबसे इंटरेस्टिंग ये होता है कि जो होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, इसमें ये एक एप्लीकेशन इंस्टॉलर मिलता है जहां से आप डायरेक्टली बिना कुछ किए भी वर्डप्रेस, जुबला या शॉपिंग वेबसाइट, ये सब इजीली डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं बिना कुछ किए। तो जैसे अगर मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ डायरेक्टली वर्डप्रेस इससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट हम देखेंगे ट्रेडिशनल मैकेनिज्म मींस हम उसको कैसे कॉपी करते। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सिंपल HTML CSS वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए पहली तो बात ये है कि उसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। आप सिंपली नेट पे सर्च कर सकते हैं फ्री डोमेन्स के, फ्री वेबसाइट, और या फिर फ्री जो हम बोलते हैं फ्री टेम्पलेट, HTML टेम्पलेट। ये फ्री HTML टेम्पलेट है, ये
एक HTML5 अप करके कोई वेबसाइट है, यहाँ से आप फ्री टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, ये कमर्शियल यूज के लिए भी फ्री होते हैं, ये टेम्पलेट है, तो आपको पूरा HTML CSS से डिजाइन करने की भी जरूरत नहीं है, पूरा फ्री टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डेमो भी दिखा रहा है कि ये इसकी वेबसाइट अगर आप बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, तो ये डेमो है, ये इस टाइप की वेबसाइट आपकी बनेगी। पर इसमें ये जो कंटेंट है ये आपको कोड के थ्रू एडिट करना पड़ता है। तो मैंने अभी एक वेबसाइट डाउनलोड कर ली है फाइन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, एक SI डाउनलोड किया है जिसे हम अपने सर्वर पे स्टोर करेंगे। फाइन, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने डाउनलोड करके एक, ये पूरी जो वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, अभी जो मैंने आपको HTML5 अप वेबसाइट दिखाया वैसे सिमिलर एक वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। इसमें देखिए लाइसेंस भी है, और यहाँ पे इन्होंने क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन अनपोर्टेड लाइसेंस दिया है। इन जनरल ये हम कमर्शियल यूज के लिए फ्रीली यूज कर सकते हैं, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको पूरे अच्छे तरह से देखना है तो ये आपको एक बार स्टडी करना पड़ेगा लाइसेंस। बट क्रिएटिव कॉमन्स इज लाइक इज अ ओपन सोर्स लाइसेंस विच हम लोग विच वी कैन यूज इजीली। अब इसमें करना ये कि या तो आप अपने कंप्यूटर पे इसको एडिट कर ले या फिर ये पूरा कंटेंट अपलोड कर दे। तो अभी हम ये कंटेंट अपने सर्वर पे अपलोड करेंगे। सर्वर पे मैं फाइल मैनेजर पे जाता हूँ। फाइन, फाइल मैनेजर पे जब आप जाएंगे और सर्वर पे आपको वो बता के रखेंगे कि कौन से फोल्डर पे या डायरेक्टरी के अंदर आपके वेबसाइट के फाइल्स जाएंगे, क्योंकि उधर आपका ये जो माई फाइल्स या आपका होम डायरेक्टरी जो होता है उसके अंदर बहुत सारे अदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी रहते हैं। तो वो कहाँ पे है, तो अभी इस पर्टिकुलर सर्वर पे, क्योंकि ये सर्वर मुझे पता है डोमेन्स के अंदर QDNS लिखा है, इसके अंदर पब्लिक HTML, जनरली लिनक्स वाले सर्वर होंगे तो पब्लिक HTML आपकी फोल्डर होगी जिसमें आपको कंटेंट अपलोड करना है। तो ओवर हियर राइट नाउ देयर इज अ इंडेक्स फाइल, index.html PHP या जो भी रहता है ये मेन फाइल होता है। जैसे ही आपके वेबसाइट पे कोई जाएगा इंडेक्स फाइल आपका शो करता है। तो अब यहाँ पे हम ये अपलोड कर देंगे सारे फाइल्स सर्वर पे। सिंपली जाएंगे, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन रहेगा, अपलोड फाइल्स, देन वी विल गो टू दिस, और यहाँ से मैं सारे फाइल्स देखता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। नहीं तो अगर जिप फाइल है तो बेस्ट है, आप जिप फाइल अपलोड कर दीजिए। लेट अस सी, मल्टीपल फाइल अपलोड शायद नहीं सपोर्टेड है, एक सेकेंड। तो इसको हम इसका जिप फाइल अपलोड कर लेते हैं। See, या फिर इसको ही जिप कर लेते हैं। देखते हैं। ओके, जो डायरेक्टरी है वो अपलोड नहीं हुए हैं, एक सेकेंड मैं इसको जिप करके अपलोड कर देता हूँ। ये डिलीट कर देते हैं एक बार। ये जिप अपलोड हो गया, इसको यहाँ पे हम अनजिप कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि ये मैं सर्वर पे काम कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ उसमें नया नहीं। जैसे नॉर्मली आप फाइल मैनेजर यूज करते हैं उसी तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑप्शन आ गया, इसको हम यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। भाई तो सारे फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो गए, इंडेक्स ईवी ये तो जिप है, सारे फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो गए यहाँ। तो अब अगर हम अपने वेबसाइट पे जाते हैं, पहले आपने देखा होगा QDNS पे
सिंपल सैम्पल पेज दिखा रहा था, अब हम qdns.in पे जाएंगे तो ये हमारा वेबसाइट का दूसरा टेम्पलेट है, ये आ गया। फाइन, ये इसमें सैंपल सब कुछ बना हुआ है, लिंक्स कैसे दिखेंगे, क्या है, ड्रॉप डाउन सब काम करता है। तो ये यहाँ पे हमारा पूरा पेज बन गया। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कुछ करना है तो आपको थोड़ा बहुत HTML आना चाहिए यहाँ पे। तो इसको आप एडिट कर सकते हैं, चाहे तो आप सर्वर पे कर ले या फिर आप अपने मशीन पे पहले से ही कर सकते हैं। फाइन, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम इसको फाइल को एडिट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा है, हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट। और यहाँ पे जो जो चीजें बनी है वो सब आपको टेक्स्ट यहाँ से चेंज करना पड़ेगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। फाइन, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस एवरीथिंग इज इन दिस कोड। और आप जब ये चेंजेस करेंगे, ये चेंजेस आपको अपने वेबसाइट पे दिखाई देगा, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट। और मल्टीपल पेजेस, लिंकिंग, वो सब आपको खुद से सीखना पड़ेगा। बट एडवांटेज ये है कि इसके लिए हमें कोई बैकग्राउंड में हमको कोई भी और प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली रन कर रहा है। तो इसमें 2-3 पेज डिजाइन है जो आप यूज कर सकते हैं। विदाउट साइड बार है, राइट साइड बार है, लेफ्ट साइड बार है, ये इस टाइप के पेज डिजाइन है जहाँ पे आप अपने पेजेस दे सकते हैं। इमेजेस ऐसे आ जाएंगे, ऐसे शेप में इमेजेस आ सकते हैं, ये सब आप इसमें से कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि इस टाइप के वेबसाइट में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ये पेजेस अपलोड कर एडिट करके अपलोड कर देने और यहाँ डाल देने। तो अगर आपको HTML CSS आता है तो आप डायरेक्टली ये मेंटेन कर सकते हैं, बाकी आपको कोई भी चीज जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आपको सिर्फ कंट्रोल पैनल में लॉग इन करना है, आपके पास फाइल मैनेजर का एक्सेस होना चाहिए जिससे आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं और वहीं पे आप एडिट भी कर सकते हैं, या प्रिफरेबली आप अपने लोकल मशीन पे पूरा सेटअप तैयार करके फिर इसको आप लोग अपलोड कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज बेसिकली हाउ वी डेवलप अ स्टैटिक वेबसाइट और मैनेज अ स्टैटिक वेबसाइट। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम देखते हैं कि वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन तो मैं आपको भी नहीं दिखाता हूँ बिकॉज ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट इफ वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट इज रिक्वायर्ड, उसके लिए हमको एक डेटाबेस बनाना होता है, राइट, जो कि आपके कंट्रोल पैनल में कहीं ना कहीं डेटाबेस मैनेजमेंट फैसिलिटी होती है। तो आप सर्च अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं डेटाबेसेस आ जाएगा, जैसे डेटाबेस ऑप्शन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग वो डेटाबेस वगैरह बना सकते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दूसरे साइट पे देता हूँ, ब्लेंडर इंडिया पे। फाइन, उसका थोड़ा अलग कंट्रोल पैनल है बट फंक्शनैलिटी यही रहती है। तो इसको हम कर देते हैं बंद। ये ब्लेंडर इंडिया की वेबसाइट है, इसका डोमेन सर्वर रजिस्टर्ड है और यहाँ पे हम वर्डप्रेस चलाना चाहते हैं। इस पे भी हम ये स्टैटिक वेबसाइट रन कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी सब सेम रहती है, सर्वर के बेसिस पे, होस्टिंग के बेसिस पे थोड़े थोड़े चेंजेस रहते हैं। तो इसके लिए लॉगिन अगर मुझे करना है तो सी पैनल मेरा आएगा। फाइन, और इधर मुझे अब लॉगिन करना पड़ेगा। दिस इज माय कंट्रोल पैनल लॉगिन। ओके, सो ये मेरा लॉगिन हो गया है। एंड ये सिमिलर इंटरफेस अगर आप नोटिस करेंगे वही सब है, फाइल मैनेजर है, बैकअप है, डेटाबेसेस है, सब कुछ है। सो वर्डप्रेस अगर हमें इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वर्डप्रेस डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए आप जाएंगे wordpress.org। आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे गेट वर्डप्रेस है, यहाँ से आप डाउनलोड वर्डप्रेस करेंगे। बिफोर यू डाउनलोड वर्डप्रेस, या आप जब वर्डप्रेस वगैरह कुछ इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं और होस्टिंग लेना चाहते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपके होस्टिंग सर्विस में उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है कि नहीं। तो उनसे क्लियरली पूछ लो कि ये रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपके सर्वर पे अवेलेबल है कि नहीं। अदरवाइज आपने सर्वर के चार्जेस दे दिए, कुछ दे दिया और उसके बाद वर्डप्रेस नहीं चला, या आप जो भी पैकेज रन करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जनरली
मेजॉरिटी ऑफ द सर्वर्स सब पे चलेगा, फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है। तो हमें PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए बैकग्राउंड में, आपको कुछ प्रोग्रामिंग नहीं करना है, और हमें MySQL डेटाबेस चाहिए। सो आपको डेटाबेस कैसे हैंडल करते हैं वो भी कुछ सीखना नहीं है, बट बेसिक फ्यू स्टेप्स हमें सेटअप के लिए चाहिए होंगे। तो हम वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आपका वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। वंस यू हैव डाउनलोडेड द वर्डप्रेस, आप अपने पास रखिए उसको। फिर हम लॉग इन करेंगे अपने कंट्रोल पैनल में, अपने वेबसाइट के कंट्रोल पैनल में। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा लॉगिन हो गया। अब पहला काम हम करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस रन करने के लिए एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, सो वी विल गो टू मैनेज डेटाबेसेस। ठीक है, तो आपके होस्टिंग सर्विस आपको कुछ लिमिटेड डेटाबेसेस बनाने के फैसिलिटी देता है, अनलिमिटेड देता है, जो भी है, सम फंक्शनैलिटी इज प्रोवाइडेड। ये आ गया, ये डेटाबेस का इंटरफेस आ गया। यहाँ पे सिंपल है, मतलब आपको अगर आप सिंपली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इधर बोल रहा है क्रिएट न्यू डेटाबेस, सो हम एक टेस्ट डेटाबेस बना लेते हैं और इसको बोलेंगे क्रिएट डेटाबेस। सो वंस डेटाबेस इज क्रिएटेड, फिर एक चीज हमें और करना है, हमको एक डेटाबेस यूजर बनाना है, user who will access this database. So this database is created. Fine. Now we will create a new user, add new user, मैं same नाम रख देता हूँ user का, and we will generate some password for it. Okay, so some password is generated. अभी since this is a demo I am showing you, ये पासवर्ड किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये बैकग्राउंड में यूज होगा, ये आपको वन टाइम यूज पासवर्ड है इंस्टॉलेशन के टाइम। फाइन, सो let's say generate some password, let's generate, and we will copy this password जो मैं अब यूज करूंगा इंस्टॉलेशन के टाइम। राइट, so we will say use password. Okay, so now another user will be created called as Gaurav GGS underscore test, and we will say create user. तो यूजर क्रिएट हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। एक स्टेप और बचता है कि हमें ये यूजर को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, so add user to database, so I will take test and test, so data user Gaurav GGS will be added to test database. अब डिपेंड करता है, समटाइम्स आपके डिफरेंट इंटरफेसेस, जैसे जो मैंने पहला वाला आपको इंटरफेस दिखाया था कंट्रोल पैनल, उसमें ये स्टेप्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं, इसमें ये स्टेप्स आपको मैन्युअली करने हैं। तो ये मैंने डेटाबेस बना के प्रिविलेज सब असाइन कर दिया है, मेक चेंजेस, ये हो गया। अब हम वापस जा सकते हैं, अवर डेटाबेस इज रेडी, एंड ये डेटाबेस का नाम हम कॉपी करके रख लेंगे। क्योंकि ये जो अभी हमने डेटाबेस बनाया है, यूजर नेम पासवर्ड, सिंस यूजर नेम एंड डेटाबेस नेम इज सेम, ये हम बना के रख लेंगे। इधर नाम आपने सेव कर लिया, पासवर्ड होपफुली आपने सेव करके रखा है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये बैकग्राउंड में हमने स्टेप कंप्लीट करके रख दिया है। अब हमको अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, सो वी विल गो टू आवर फाइल मैनेजर। इन दिस सर्वर आल्सो पब्लिक HTML इज द होम डायरेक्टरी, और रादर द वेब डायरेक्टरी, जहां से कोई भी हमारे साइट पे आता है तो वो कंटेंट सिर्फ इसी डायरेक्टरी में से जाता है और कहीं से एक्सेस नहीं मिलता है। राइट, तो इस डायरेक्टरी के अंदर हम अपना वर्डप्रेस अपलोड करेंगे। सो वी विल से अपलोड। थोड़े बहुत फर्क होते हैं इंटरफेसेस में, आपको सब देख के आपको पता चल जाएगा। तो डाउनलोड्स में जाते हैं, ये वर्डप्रेस मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। तो दिस वर्डप्रेस इज अपलोडेड, इसको रीलोड करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्डप्रेस आ गया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट हो गया, पर आप देखेंगे कि वर्डप्रेस जो है वर्डप्रेस फोल्डर में गया है। तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपकी वेबसाइट में ऐसे जाएगा, आपकी blenderindia.in/wordpress, ऐसा नहीं किसी को पसंद आएगा।
आप चाहते हैं जैसे कोई मेरे वेबसाइट पे आए, मेरे वर्डप्रेस का इंटरफेस या जो भी मैं वर्डप्रेस के थ्रू लोगों को शेयर करना चाहता हूँ डायरेक्टली आए। तो जनरली आपने देखा है जिप फाइल जब भी अनकम्प्रेस करते हैं तो वो फोल्डर ही बना देता है। तो ये फोल्डर में चला गया, हम इसमें फोल्डर में जाके सब कुछ सेलेक्ट करके इसको बाहर मूव कर देते हैं। फाइन, इस पब्लिक HTML के अंदर डायरेक्टली। तो आप मूव बोल सकते हैं यहाँ से, मूव टू पब्लिक HTML, ठीक है। या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते थे डायरेक्टली पब्लिक HTML पे। सो प्राइमरीली ये इधर मूव हो गए हैं सारे फाइल्स। फाइन, अब आपको ये वर्डप्रेस फाइल की जरूरत नहीं है, मैं इसको टेम्प में डाल देता हूँ अभी यहाँ से उठा के, ठीक है। डिपेंड्स, इंटरफेस टू इंटरफेस डिपेंड करता है। जैसे इस इंटरफेस में ड्रैग एंड ड्रॉप अलाउड है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, बट फाइल मैनेजर आप आसानी से यूज कर सकते हैं क्योंकि आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो ये आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अब ये हो गया, बस इतना ही आपको करना है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन शुरू करने के लिए। तो हम सिंपली जाएंगे blenderindia.in, और क्योंकि हमने सब पब्लिक HTML में डाल दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक index.php फाइल है। ये पूरा वर्डप्रेस प्रोग्राम PHP में लिखा हुआ है, इसकी कोडिंग PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे है। तो यहाँ पे एक index.php है, ऑटोमेटिकली इस फाइल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली जाऊंगा blenderindia.in, मुझे कुछ नहीं करना है, आई विल प्रेस एंटर और ये आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। ये वर्डप्रेस बहुत सारे लैंग्वेजेस में, जस्ट अ सेकेंड, मेरा ऑडियो आप लोगों को आ रहा है? ओके, ठीक है। सो कंटिन्यूइंग विद दिस, तो मैं इंग्लिश में ही कंटिन्यू रखूं या हिंदी में कंटिन्यू रखूं? किस में आपको प्रेफरेंस क्या है? हिंदी में ही ठीक लग रहा है तो मैं हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ये पूरा हिंदी में कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, तो इसको स्टैंडर्ड इंग्लिश यूएस में ही रखते हैं अभी, सो दैट इट इज इजियर। वी विल कंटिन्यू। फाइन, नाउ हियर इट इज आस्किंग मी डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट, ये सब टेबल प्रीफिक्स वगैरह। तो अगेन इसमें आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। अब जो हमने इंफॉर्मेशन अपना सेट किया था, टेस्ट डेटाबेस, यूजर नेम, पासवर्ड, अब हमको यूजर नेम भी यही है, डेटाबेस नेम और यूजर नेम हमारा सेम है। इसका पासवर्ड हमको देखना पड़ेगा। सो पासवर्ड जो हमने सेव किया था वो यहाँ पे हम वो पासवर्ड डाल देंगे। और होस्ट नेम यूजुअली आपका लोकल होस्ट ही रहेगा। और टेबल प्रीफिक्स ये WP रहने दीजिए, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इंटरनल है। चाहे तो आप इसको कुछ और चेंज कर सकते हैं, बट लेट इट बी एज इट इज। फाइन, सबमिट कर देते। नाउ इट इज आस्किंग टू रन द इंस्टॉलेशन, सो इंस्टॉलेशन विल स्टार्ट नाउ। दिस पार्ट इज जो वेबसाइट इंटरफेस आएगा उसके लिए। तो अब तक जो हमने यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह यूज किए थे वो आपको आगे इमीडिएट जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेव करके रखिए, डेटाबेस क्या नेम क्या था, पासवर्ड क्या था, यूजर नेम क्या था, आप सेव करके रख लीजिए फाइल में। बट वो सिर्फ बैकएंड में कई बार कुछ काम करना है, कुछ एरर इशू हो गया तब जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज इस स्टेप के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद आपको कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पे जो पासवर्ड वगैरह है ये वर्डप्रेस इंटरफेस और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का पासवर्ड सेट होगा और यूजर सेट होगा। सो let us say the website name is Blender India, username is ABCD, जो भी आपको यूजर नेम रखना है, और यहाँ पे आप एक पासवर्ड सेट करेंगे। तो इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, यूजर और पासवर्ड। ये आपके वेबसाइट का प्राइमरी यूजर होगा और यहाँ पे आप एक ईमेल आईडी देंगे, प्रिफरेबली आप जीमेल वगैरह का दे दीजिए या जो भी आपके पास एक्सेसिबल है। मेक श्योर दिस ईमेल आईडी इज करेक्ट, क्योंकि अगर आप ये पासवर्ड वगैरह भूल गए और पासवर्ड रीसेट करना है
तो वो यहीं से होगा, राइट। दिस इट आपको इसी पे लिंक आएगा, और अगर ये गलत हो गया तो आपका चलेगा नहीं। तो इसको नाउ वी विल से इंस्टॉल वर्डप्रेस। यूजुअली सर्वर्स पे सेटिंग्स बहुत प्रॉपर रहते हैं, तो आपको कोई ऐसे इश्यूज आने नहीं चाहिए यहाँ पे, एंड इमीडिएट ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, डिपेंडेंट ऑन द लोड ऑफ द सर्वर और द स्पीड ऑफ द सर्वर। तो अभी सर्वर पे थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है, सॉरी लोड ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। सो अब हम लॉग इन कर सकते हैं, राइट। ये आ गया हमारा वर्डप्रेस का लॉगिन। ये लॉगिन पाथ ये होता है जब आप आएंगे अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट पे, तो blenderindia.in जो भी आपके वेबसाइट है /wp लॉगिन, या फिर आप wp-admin अगर लिखेंगे ADMIN, तो वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा, ये लॉगिन पेज पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप अपना जो हमने अभी वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था उसका पासवर्ड डालेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे जो अभी बनाया था, ठीक है। और पहले के जैसे मैंने आपको बताया उसको आपको याद रखने के, याद मीन्स आप सेव करके रख लीजिए, बट इमीडिएट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज नाउ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ वर्डप्रेस, ये यूजर से आप सारा काम करेंगे, ठीक है। सो लेट अस लॉग इन नाउ ऑन दिस। ओके, सो दिस इज योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। अभी इसमें आपको बहुत कुछ चीजें दिखाई देंगी। ये है डैशबोर्ड जहां से आप सारा काम कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस का, राइट। वर्डप्रेस में दो चीजें बनती है, एक बनते हैं पेजेस, एक बनते हैं पोस्ट्स। क्योंकि वर्डप्रेस ब्लॉग इंजन है तो इसमें यूजुअली हम पोस्ट्स बना के देते हैं, डेली के डेली आप कुछ कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ से हम पोस्ट बना सकते हैं, फाइन। पोस्ट है, आप एडिट मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से पेजेस ऐड कर सकते हैं, पेजेस जो स्टैटिक पेजेस रहते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट आवर वेबसाइट हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये तो हमारा डैशबोर्ड हो गया। अगर कोई हमारे वेबसाइट को विजिट करेगा तो उसको वेबसाइट कैसे दिखेगी, तो अभी इसमें एक बहुत ही बेसिक सा डिजाइन यूज हो रखा है, तो ये थोड़ा आपको ब्लैंक सा लग रहा है। इसको हम चेंजेस कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी कोडिंग, इसके लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पेजेस बना सकते हैं। तो जैसे आपको कोई पेज बनाना है, आप पेज पे जाइए, कुछ पेजेस आपके सैंपल उसके लिए दे रखे हैं। जैसे ये सैंपल पेज का लिंक आ रहा है यहाँ पे, ऐसे ही पेज। तो यूजुअली जैसे कोई भी वेबसाइट हम बनाते हैं तो 3-4 पेज होते हैं, सैंपल, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, उस टाइप का आपको कोई पेज बनाना है तो आप यहाँ से पेजेस से बनाएंगे। सो उसके लिए क्या करना है, हम बोलेंगे ऐड पेज, ठीक है। तो ये आपका इंटरफेस आ गया, पेज ऐड करना है। यहाँ पे आपको टाइटल ऐड कर देना है। यहाँ पे हम टाइटल ऐड करेंगे, लेट्स से कॉन्टैक्ट अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन ईमेल एंड वेबसाइट। सो ये आपका पेज बन गया है। इसमें दिस इज ए एडिटर, दिस इज ए ब्लॉक बेस्ड एडिटर जहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपको ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ करना है तो यहीं पे उसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है। कलर्स चेंज करने, लाइक इफ दिस कॉन्टेक्ट अस ब्लॉक इज देयर, इस ब्लॉक के कुछ चेंजेस वेंजेस करने हैं वहां से। ओके, दिस इज टाइटल, इसमें हम ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे इसको कुछ चेंज करना है आपको, नहीं, इसका बैकग्राउंड कलर आपको दूसरा देना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो विदाउट कोडिंग हम सब चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। ये तो शायद दूसरा सिलेक्ट हो गया। यहाँ से मैं इधर टेक्स्ट कलर चेंज कर दूंगा। ओके, सो यू कैन सी विदाउट एनी कोडिंग, बेसिकली जनरेट HTML ही होगा बैकग्राउंड में, बट विदाउट एनी कोडिंग आई एम एबल टू डू थिंग्स ओवर हियर डायरेक्टली, राइट। सो यहाँ पे टेक्स्ट कलर फिर चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा पेज बन गया। इसको आप फिर सिंपली बोल देंगे पब्लिश। ओके, विजिबिलिटी है पब्लिक, यू कैन सी, एंड पब्लिश इमीडिएटली। कई बार ये होता है कि आपको पेज या आपका पोस्ट इमीडिएट नहीं करना है, आप पीरियोडिकली किसी डेट पे उसको पब्लिश करना चाहते हैं तो फ्यूचर डेट आप सेट कर सकते हैं। तो हम इसको कर देंगे पब्लिश इमीडिएटली एंड से पब्लिश, राइट। और अब हम देखते हैं वेबसाइट पे अगर हम जाएंगे
तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक ऑटोमेटिकली आ गया है। तो यहाँ पे आप एक 6-7 पेजेस बना सकते हैं जो आपको करने हैं। और जनरली जो ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट होते हैं उसमें हमारे जो पोस्ट होते हैं वो यहाँ पे एक के बाद एक ऑटोमेटिकली आते हैं फ्रंट पेज पे, राइट, जो आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। तो ये तो हमारा पेज हो गया। अब हम वापस जाते हैं डैशबोर्ड। दूसरा होता है हमारे पोस्ट्स। सो विल गो टू पोस्ट्स। हेलो वर्ल्ड एक डिफॉल्ट पोस्ट आपका बना हुआ है। हम एक नया पोस्ट ऐड करेंगे। तो पोस्ट यूजुअली डेट बेस्ड होता है, जो भी आप डेट पे करेंगे तो वहां पे पोस्ट आ जाएगा। सो व्हाट इज ब्लेंडर से कोई पोस्ट है, कहीं से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। थोड़ा कंटेंट ले आते हैं। सो जैसे हम कुछ कंटेंट पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको कोई चेंजेस करने हैं, कुछ करने हैं तो ये आप कर सकते हो। तो ये पेज हो गया। अब इसी में पेज पोस्ट से रिलेटेड हम लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट रिलेटेड चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप पोस्ट पे आते हैं तो यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज है। आपको पोस्ट के साथ कोई इमेज डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कोई इमेज अपलोड करते हैं यहाँ से। ओके, सो ये इमेज अपलोड कर दिया मैंने। इसके डिटेल्स वगैरह आप कुछ कुछ एंटर कर सकते हैं एंड से सेट फीचर्ड इमेज। सो दिस इमेज इज नाउ सेट। यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा है बट इसको जब हम पब्लिश कर देंगे, राइट, ये हमारा पब्लिश हो गया इधर। एंड इफ वी गो टू अवर वेबसाइट नाउ, राइट, so you will see, let me see, publish view post। so ये आपकी पोस्ट इधर डिस्प्ले हो गई। और ऑटोमेटिकली सिंस वी आर यूजिंग वर्डप्रेस, वर्डप्रेस हैज दिस मैकेनिज्म वेयर पीपल कैन गिव कमेंट्स ऑन योर पोस्ट्स। सो ये जो पोस्ट है वो यहाँ पे दिखा रहा है। आप अपने वेबसाइट के होम पे जाएंगे, राइट, विजिट वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ब्लॉग पोस्ट पहला आ गया, ये सेकंड आ गया। ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके जो भी ब्लॉग पोस्ट है वो ऐसे आते रहेंगे। तो इस तरह से आप इमीडिएटली अपने वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हैं और जो भी आपको चेंजेस करने कुछ करने हैं, वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं लुक एंड फील की। जो वेबसाइट है हमारा, अभी इसका लुक एंड फील बहुत ही बोरिंग सा है, प्लेन है। बोरिंग तो नहीं है, मतलब इट इज नॉट वेरी फैंसी। सो अगर आपको आपकी साइट वर्डप्रेस बेस्ड है तो इसमें अपीयरेंस में हम जाके थीम्स में जा सकते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड थीम्स है जिसे आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऐड थीम्स पे जाइए। थीम्स मतलब विच डिफाइंस द होल लुक एंड फील ऑफ योर वेबसाइट। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, राइट। तो आप उसमें से कोई थीम जो आपको थोड़ा ठीक लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। And after selecting that theme, that look and feel will show up। like if ये कॉफी शॉप करके कोई थीम है, डिटेल्स एंड प्रीव्यू, आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो लेट्स डू अ प्रीव्यू। तो अगर ये कॉफी शॉप थीम डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये थीम इस तरह से डिजाइंड है। बट एक चीज याद रखना, ये तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इन्होंने पूरा कंटेंट डाल दिया है तो ऐसा आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आपको मिल जाएगा। और या फिर जैसे ये कोई थीम है सिंपल सा, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग लेटेस्ट से वी विल टेक दिस थीम। तो हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ से। तो अब आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको जस्ट वेट करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। एक और कोई इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें से।
इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, ये तो सिमिलर ही है। चलिए इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये 2 थीम हमने इंस्टॉल कर लिया है इधर। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो भी थीम आप इंस्टॉल करेंगे वो थोड़ा स्पेस ले लेगा, तो आपको जो थीम्स है उसमें से फाइनली जो आपका डिसीजन होगा वो थीम यूज करिए, और बाकी आप रिमूव कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। सो अभी हमने डाउनलोड किया एक, तो ये 2015 एनवो रॉयल, तो इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। तो ये थीम एक्टिवेट हो गया। अब हम अपने वेबसाइट पे जाते हैं। फाइन, नाउ completely our theme has changed. It shows hello world, blender india, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आ गए हैं, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, आर्काइव्स एंड ऑल, और ये इमेजेस वगैरह इसमें ऑटोमेटिकली इन्होंने दिया है। तो थीम जैसे ही हमने चेंज किया तो आप देख सकते हो पूरा लुक एंड फील उसका चेंज हो गया। और जब कोई थीम पे क्लिक करता है तो वो पूरे थीम पे, कोई भी पोस्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो दैट पोस्ट इज कमिंग लाइक दिस। और आप देख सकते हैं जो पोस्ट की फीचर्ड इमेज थी वो ऑटोमेटिकली इस थीम में बैकग्राउंड में जूम इफेक्ट के साथ आ रहा है। तो बिना कुछ किए आप देख सकते हो कि मैंने एक लाइन भी कोड का नहीं लिखा है, और पूरे वेबसाइट का लुक एंड फील सेट हो गया है एक डिफरेंट स्टाइल में। फाइन, फिर एक और पॉइंट हम देख लेते हैं कि ये तो थीम्स का हो गया। अभी वर्डप्रेस बहुत पावरफुल है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं वर्डप्रेस पे, कि जब आप साइट विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आता है, ये पूरे सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा और उसका डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। तो यहाँ से भी आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जैसे ये सब जो सेटिंग्स है, हेडर है, लुक एंड फील है, कलर्स है, हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं पूरे साइट का। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। जो थीम डाउनलोड होने के बाद भी आप उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर इन योर दिस थिंग इज कॉल्ड एज प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या है, आपके वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर लुकिंग एट अ पोस्ट, जैसे ब्लेंडर इंडिया का पोस्ट देख रहे हैं, तो आप इधर देख सकते हो यहाँ पे कमेंट पोस्ट करते हैं। अभी कमेंट जब पोस्ट करते हैं तो मेनी टाइम्स यू माइट हैव सीन दैट कैप्चा थिंग कम्स अप, कैप्चा इमेज आता है, और उससे क्या होता है, स्पैम कमेंट्स रिड्यूस हो सकते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्लगइन सर्च कर सकते हैं उसके लिए। उसको हम करेंगे, सर्च करते हैं कैप्चा। ठीक है, तो कैप्चा रिलेटेड प्लगइन्स आ जाएंगे, मल्टीपल डिफरेंट कैप्चा बेस्ड प्लगइन्स आर देयर। उसमें से आपको जो सूटेबल लगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म कैप्चा इज देयर, सम सिंपल कैप्चा, एक इमेज कैप्चा हमको इंस्टॉल करते हैं। कैप्चा कोड, रियली सिंपल कैप्चा, चलिए ये देखते हैं क्या है। ठीक है, दिस प्लगइन इज नॉट टेस्टेड फॉर योर करेंट वर्जन। ये भी एक पॉइंट है कि आपको चेक करना है कि आपके वर्जन से सूटेबल है कि नहीं। Fine. Let's say this, there is a math captcha, spam emails, देखते हैं इसको, सर्च करते हैं इमेज कैप्चा। सिंपल लॉगिन कैप्चा, चलिए सिंपल कैप्चा इंस्टॉल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपली इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल होने के बाद आप अपने प्लगइन्स पे चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस सिंपल कैप्चा इज देयर, इसको एक्टिवेट कर देंगे। कैप्चा एक्टिवेट हो गया। अब इसमें
कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, कुछ डिटेल्स हो सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं लेटर ऑन। बट जनरली अगर ये कैप्चा कंप्लीटली वर्किंग है तो ऑटोमेटिकली ये कैप्चा जो है हमें इसमें दिखाई देना चाहिए। तो जैसे व्हाट इज ब्लेंडर, इसको हम एक इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करते हैं। फाइन, अभी यहाँ पे बिफोर द कमेंट दैट कैप्चा शुड बी enabled, so it is not showing up. Let's see, इसकी कहीं पे आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। रियली सिंपल कैप्चा, व्यू डिटेल्स, ओके। इसमें हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कैसे सेटिंग करनी है। तो जब आप सेटिंग कर देंगे तो ये आपके इसमें आ जाएगा। एक और है एडिटर, यहाँ से ऐड प्लगइन से जाके, हाँ। सो देर इज वन थिंग इस क्लासिक एडिटर, इसका मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे आप कोई पेज बना रहे हैं या पेज एडिट कर रहे हैं, दिस सैंपल पेज, तो some people don't like this particular editor, ये जो इसको हम ब्लॉक एडिटर बोलते हैं। some people like this editor, some people don't like this editor। तो अगर जैसे आपको ये एडिटर नहीं पसंद है, आपको एक पुराने स्टाइल का एडिटर यूज करना है, तो दिस इज द क्लासिक एडिटर, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। so this editor is now installed, and if we go to plugins, we will activate this particular editor, classic editor। ठीक है, क्लासिक एडिटर आ गया, सेटिंग्स, एंड we go to its settings, नहीं, plugins, classic editors, settings, default post format categorized, हाँ। so default editor for all user is going to be classic editor यहाँ पे, ठीक है, इसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है। अब अगर कोई एडिटिंग करेगा, just reload this page, so it will show you a different kind of editor, right? जो आपके कंपैरिजन में, this is straight forward simple editor which you can use over here। so this is एग्जाम्पल कि हम बिना ज्यादा कोडिंग के और बिना किसी कोडिंग के हम फंक्शनैलिटीज भी ऐड कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस में, right? फिर इसमें आप मल्टीपल यूजर्स की फंक्शनैलिटी है, आप यूजर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपके वेबसाइट पे मल्टीपल यूजर्स है तो आप उसमें यूजर्स ऐड कर लीजिए। यूजर्स के रोल हैं ऑटोमेटिक, जैसे कि अभी ये यूजर है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर है, आप नया यूजर ऐड कर लीजिए यहाँ पे, और उसको रोल आप सेट कर सकते हैं। सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, अलग अलग रोल है। तो जनरली लाइक आप चाहते हैं कि वो कुछ नए पोस्ट वगैरह ऐड करे तो आप उसको ऑथर बना दीजिए, राइट। एडमिनिस्ट्रेटर इज कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन, ये यूजुअली एक ही होगा आपके वेबसाइट पे प्रेफरेबली, बाकी आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। लाइक इफ योर वेबसाइट आर्टिकल्स आर टू बी एक्सेस्ड ओनली बाई सब्सक्राइबर, तो आप लोगों को सब्सक्राइबर रोल दे सकते हैं, सो पीपल कैन लॉग इन एंड दे कैन एक्सेस देयर पेजेस। सो दिस इज द वर्डप्रेस इंटरफेस। और व्हाट वी हैव नोटिस्ड कि बिना कोडिंग के और बिना कुछ किए हम इजीली अपना वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। सो लाइक इफ यू गो टू वेबसाइट डायरेक्टली using an interesting theme, we have a very nice colorful website, and we can start running our website, and posts and pages can be developed over here। और अगर आपको इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चाहिए तो थोड़ा लर्न करेंगे कैसे कस्टमाइज करते हैं वेबसाइट को। आप हेडर, फुटर, साइड बार, कौन सा कंटेंट कहाँ दिखाना है, वो सारा डायरेक्टली बिना कोडिंग के आज के टाइम में आप वर्डप्रेस से कर सकते हैं। So that is it, an overview of WordPress and how the control panel works, how you can log in and uh, install the WordPress and create the database and start working with your WordPress. Okay, then let us end our session here. I hope you enjoyed
and got some understanding relating to this. And we'll be continuing further with the similar sessions and other different topics. So please be a part of our group. Your email IDs and other things are there. मैं आपको update करता रहूँगा. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक पे सेशन होना चाहिए तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम लोग उस पर ट्राई करेंगे. बट obviously if it is related to open source software and open source concepts, then only we can do it. So thank you for joining in. We'll meet in some next topic and interesting work in some upcoming webinar and other things. Thank you everyone. Have a nice day.